Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we studied about the principle of political economy, right? His principle of political economy, like we were studying about the John Mill and we were studying his principle of political economy. उनका जो उन्होंने लिखा था The Principle of Political Economy of 1848 tried to solve that economy was not the decimal science that Thomas Carlyle ने बोला था. It was a literacy criticized had supported. It became one of the most widely read of all books on economy in the period and dominated economics teaching for decades. His early economic philosophy was generally one of the free market with minimal intervention in the economy, and the principle is largely a highly proficient restatement of Smith and Ricardo's theory of classical economy. He helped develop the idea of economies of scale, opportunity, cost, and comparative advantage in trade. Then we were studying about the utilitarianism. His utilitarianism of 1861 remains the classic defense of the utilitarianism view that we should aim at maximizing the welfare of all sentiments creature. However, he was keen to develop utilitarianism into a moral humanity doctrine. One of Mill's major contribution to utilitarianism was his argument for the qualitative separation of pleasure. His intent that happiness should be exist not merely by quality but by not by quantity but by quality, and more specifically that intellectual and moral pleasure are superior to more physical form of pleasure. He went so far as to say that he would rather be a dissatisfied human being than a satisfied pig. He also turned away from Benetton's external standard of goodness to something more subjective. Then his thought on liberty. However, it was Mill's essay on liberty of 1859 that arose the greatest controversy and the most violent expression of approval and disapproval. See, ये क्या था? It was मिल ने essay लिखा था on liberty पे, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज था, बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ, बहुत से लोग ने एग्री किया, बहुत से लोग ने डिसएग्री किया. It addresses the nature and the limit of power that can be legitimately exercised by society over the individual, and he laid down his one very simple principle governing the use of coercion in society, arguing that we may know only coercion others in self-defense, either to defend ourselves or to defend others from harm. Then on liberty also contains an impassionate defense of free speech, arguing that free discourse is a necessary condition for intellectual and social progress. Then examination of Sir William Hamilton's philosophy. See, Mill's examination of Sir William Hamilton's philosophy of 1865 constituted the first developed presentation of the doctrine of phenomenology, and it includes his quotes. Matter then may be defined as a permanent possibility of sensation. Although the origin of phenomena can be traced back to George Berlin, it was only after Mill that a commitment to the doctrine became standard among the scientific philosophers until suppressed by facialism in the 1930s. Then the subjection of women. The Subjection of Women of 1869, apparently published late in life in order to avoid the controversy. See, Mill क्या व्यू का था कि even women should have right to vote and even they should express their ideas and all. मतलब को वुमेन को मोटिवेट करता चाहता था. Mill argued that if freedom is good for men, then it is good for women too. जब दोनों के नेचर सेम रहते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों के नेचर सेम है, तो दोनों में इतना भेदभाव क्यों करते हैं?
अगर आपको भेदभाव करना है तो किसी एक्सपेरिमेंट किसी को एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, उस पर भेदभाव कीजिए ना आप। Likewise, they chose not to have his third essay on religion. अब उसका एक थर्ड essay था, it was on the religion, right? बहुत से लोगों वो जब ये थर्ड essay on religion आया तो बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। क्यों? उसने ये जो ट्रेडिशनल रिलीजन सिस्टम था, व्यू था, वो चेंज करके he had come up with सर अल्टरनेटिव रिलीजन ऑन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बहुत से लोगों ने इसको आर्ग्यू किया था यहाँ पे। नाउ moving towards the next point, view on liberty. Mill gave importance to individual liberty. Mill ने क्या किया? Mill gave importance to individual liberty because there are some reasons which are born out from the circumstances in England. क्यों? उस वक्त कुछ ऐसे रीज़न थे जो ये सारे बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे इंग्लैंड में, इसलिए उसको लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। In 1832, Reform Act was passed by the government of England. See, अभी 1832 में क्या हो गया था? रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था इंग्लैंड में, गवर्नमेंट ने पास किया था इंग्लैंड में। इट एक्सपेंडेड द गवर्नमेंटल मशीनरी एंड इंक्रीज्ड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। सी, इट एक्सपेंडेड द गवर्नमेंटल मशीनरी। अब ये क्या हो गया था यहाँ पे? इट एक्सपेंडेड द governmental machinery and increase the function of state. Simultaneously, there was a demand for more liberty by the people. अब गवर्नमेंट ने मशीनरी बढ़ा दी, फंक्शन ऑफ स्टेट बढ़ा दिया, तो लोगों ने क्या डिमांड किया? लोग भी तो कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे इसके बदले। सो पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोर लिबर्टी। All these circumstances made liberty of the individual the theme in England in the middle of the 19th century. से ये जहाँ सारे circumstances क्या हो गए? Made liberty of the individual the theme in England. अभी ये थीम ही बन गया, लिबर्टी एक थीम बन गया उस वक्त इंग्लैंड में in the middle of the 19th century. In that situation, Mill published his essay on liberty. और उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मिल ने क्या किया? मिल ने ऐसे पब्लिश किया ऑन लिबर्टी टू डिफेंड द केस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ताकि वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे डिफेंड कर सके। हिज बुक वॉज अ पावरफुल प्ली फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द गवर्नमेंटल इंटरफियरेंस। सी, उसकी जो ये बुक थी, जो मिल ने उस सिचुएशन को देखते हुए लिबर्टी पे जो बुक लिखी थी ना, वो क्या थी? एक बहुत पावरफुल था वो बुक फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी हर मामले में, उसके अगेंस्ट ये सारा लिखा गया था। जे एस मिल बिलीव दैट द गवर्नमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सोशल वेलबीइंग। सी, मिल क्या बिलीव करता है? गवर्नमेंट क्यों है? लोगों की भलाई करने के लिए, राइट? लोगों के इसमें इंटरवेंशन करने के लिए गवर्नमेंट है क्या? नहीं। गवर्नमेंट किस लिए है यहाँ पे? गवर्नमेंट इज मेंट फॉर द सोशल वेलबीइंग। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फाइंड देयर बेस इन ह्यूमन विल एंड इंटरेस्ट। सी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? दे फाइंड देयर बेसिस इन ह्यूमन विल एंड इंटरेस्ट। लिबर्टी एज अ कंसेप्ट, लिबर्टी एज अ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। सी, लिबर्टी क्या है? ये एक बड़ा कंसेप्ट है, और लिबर्टी क्या है? सबसे ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट इज़ एन इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। सी, लिबर्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो, ह्यूमन पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलपमेंट हो, इसलिए लिबर्टी ज़रूरी है। सी, लिबर्टी को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है यहाँ पे? हाँ, लिबर्टी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, राइट? और उस वक्त इंग्लैंड में कैसा था गवर्नमेंट? कि इट वॉज लिबर्टी नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहा था। सो लिबर्टी एज अ कंसेप्ट, liberty is extremely important in democracy. It is an essential condition for all round development of human personality. Then moving forward, we'll be looking at the meaning of liberty.
लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। सी, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। वी नीड लिबर्टी टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। सी, वी नीड, सी लिबर्टी क्या है? एक तरफ का फ्रीडम ही है, राइट। लिबर्टी एक तरफ की फ्रीडम है, एक तरफ का आज़ादी है। अपने को लिबर्टी क्यों चाहिए? ताकि अपन खुद की रक्षा कर सके, हाँ, और स्टेट अपना काम खुद कर सके। अगर स्टेट ने लिबर्टी नहीं दी और सारे डिसीजन स्टेट ही लेता रहा तो आपका कुछ भी अच्छे से चलेगा क्या? विल इट बी हेल्पफुल? क्या सब कुछ अच्छे से चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या है? लिबर्टी ज़रूरी है। हेंस एरिया ऑफ एक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड। सी, इसलिए क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ एक्शन ऑफ स्टेट क्या है? वो एक लिमिटेड रहना चाहिए। एनी एक्सटेंशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट मीन्स इरोशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। सी, एनी एक्सटेंशन इन द एक्टिविटी ऑफ स्टेट। सी, अगर स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ये कर रहा है, मतलब क्या है? आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है? ये खतरे में आ जाती है। इंडिविजुअलिस्ट लाइक मील believe that the state comes into existence to protect life, liberty and property of the individual. See, individualist like मील, अभी मील का क्या थॉट था इस पे कि वह स्टेट का एग्जिस्टेंस क्यों है? ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके, राइट। उनकी हर तरह से ही सेफगार्ड्स है, नॉट फॉर द गेटिंग द फ्रीडम। लाइक लोगों की फ्रीडम छीनने के लिए स्टेट बनाते, गवर्नमेंट बनाते क्या अपन? नहीं, अपन स्टेट गवर्नमेंट ये सब क्यों बनाते हैं? ताकि अपन लोगों की रक्षा कर सके, ताकि उनका सब कुछ अच्छे से हो सके। इन वेलफेयर स्टेट, स्टेट टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सी, इन वेलफेयर स्टेट क्या होता है? इन वेलफेयर स्टेट, स्टेट takes up the responsibility of development of an individual and society. Hence, it is essential to have reasonable restrictions on individual. Hence, क्या है? ज़रूरी है to have a reasonable restrictions on individual. With reasonable restriction of the state on liberty, everyone can enjoy liberty better. See, अभी आपको लिबर्टी देनी चाहिए, राइट। हर किसी को लिबर्टी चाहिए, बट उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी ज़रूरी है ना। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे तो क्या होगा? हर कोई उसका गलत फ़ायदा उठाएगा। अगर हर कोई गलत फ़ायदा उठाएगा तो क्या है? वापस अपना डेमोक्रेसी, अपना गवर्नमेंट, स्टेट सब कुछ खतरे में आता है। तो क्या हुआ? थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस भी चाहिए लिबर्टी पे, ताकि हर कोई अच्छे से लिबर्टी का फ़ायदा उठा सके। एवरीवन कैन एन्जॉय द लिबर्टी इन अ बेटर वे। इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो क्या है? ऐसा माहौल बना रहेगा जहाँ पे डेवलपमेंट सब कुछ अच्छे से हो रहा है। मील वॉज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ लिबर्टी। मील क्या था? मील वॉज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ लिबर्टी। ही डिफेंडेड द केस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन हिज बुक ऑन लिबर्टी। सी, मील लिबर्टी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, बहुत अच्छे से बिलीव करता था, और उसने ऐसे में अपने इस लिखा इंडिविजुअल लिबर्टी कैसे रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, ये सब उसने अपने एक ऐसे में लिखा है। मील वॉज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ लिबर्टी। ही डिफेंडेड द केस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन हिज बुक ऑन लिबर्टी। देन मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी। अभी लिबर्टी का इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? अभी अपन इतना लिबर्टी की वगैरह बात कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी? फर्स्ट वन, Mill believed that the process of society depend largely on the originality and energy of the individual. See, Mill क्या बिलीव करते थे? ये जो प्रोसेस ऑफ सोसाइटी किस पे डिपेंड होता है? इट्स लार्जली ऑन द ओरिजिनलिटी एंड द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल. द सोसाइटी वुड बी एनरिच्ड बाय द वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स इन इट. सी, द सोसाइटी वुड बी एनरिच्ड. हाँ, अभी अलग अलग लोग रहते हैं, उन सब से अपनी सोसाइटी बनती है. Hence, he emphasizes that the individual must be allowed maximum liberty to determine his own affair. See, Mill believed that
the process of society depend largely on the originality and energy of the individual or the society. It should be enriched by the variety of characters in it. Hence, he emphasized that the individual must be allowed maximum liberty to determine his own affairs. अब इसलिए क्या बोलता है मिल कि अब हर एक इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी दो ताकि वो उसका सब डिटरमाइन कर सके, लाइक मेरे को क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ वो अपने आप से अच्छे से डिटरमाइन कर सके. नीड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. अब ज़रूरत क्या है, लिबर्टी चाहिए ताकि इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रो कर सके. अगर मैं आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डालूँ तो यू कैन टर्न इनटू समथिंग वेरी गुड पर्सनैलिटी. हाँ, आप कुछ ना कुछ तो एक अच्छे इंसान बनोगे. अगर मैं आप पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डालूँ तो आप अच्छे इंसान बन पाओगे क्या? नहीं. इफ स्टेट डज नॉट प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सपांड देयर मेंटल फैकल्टीज, इट इज़ नाइदर गुड फॉर द इंडिविजुअल नॉर फॉर द गवर्नमेंट. सी, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर स्टेट आपको अच्छे से अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, हाँ, तो क्या है, आपका डेवलपमेंट, एक्सपैंड, ये सब कुछ अच्छे से होगा क्या? नहीं होगा. अगर आपका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ भी अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, तो इसका नतीजा क्या हो जाएगा? ना ही स्टेट के लिए अच्छा होगा, ना ही आपके लिए ये चीज़ अच्छी होगी. दोनों खतरे में रहेंगे ना, क्योंकि आपका कुछ अच्छे से नहीं होगा तो, बट ऑब्वियसली स्टेट का भी कुछ अच्छे से नहीं होगा. इसलिए क्या है, लिबर्टी ज़रूरी है. इट रिगार्डेड लिबर्टी एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडिविजुअलिटी. इसलिए मिल क्या बोलता है, मिल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है. क्यों? क्योंकि ये जिससे यहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, खुद को प्रमोट भी कर सकते हो. लाइक अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, आपको अच्छे से खुद की रक्षा करनी है, इफ़ यू वांट टू ग्रो वेल, अगर आपका सब अच्छा चाहते हो तो क्या है, आपको लिबर्टी भी पूरी अच्छे से मिलनी चाहिए. और आपका खुद का डेवलपमेंट होगा तो बट ऑब्वियसली आपका स्टेट भी डेवलप होगा और गवर्नमेंट भी डेवलप होगा. Then moving towards the third point, ultimately value of the state depends upon the quality of individual. अल्टीमेटली क्या है, अभी ये स्टेट का इम्पोर्टेंस कब रहेगा? अभी जब वो इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देंगे, इंडिविजुअल सब अच्छे से रहेंगे. हाँ, क्वालिटी, इंडिविजुअल कितने अच्छे हैं उसको स्टेट डिपेंड रहेगा ना. अगर स्टेट में सब लोग अच्छे हैं, इफ़ वी हैव अ क्वालिटेटिव पब्लिक इन द स्टेट, तो क्या है, आपका स्टेट भी अच्छे से ग्रो करेगा. जितने ज़्यादा अच्छे से लोग रहेंगे उतना ही अच्छा आपका स्टेट रहेगा, उतना ही अच्छा आपका स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड द स्टेट. अभी जब अपन लिबर्टी की इतनी तब से बात कर रहे हैं तो क्यों अपन इतना बात कर रहे हैं लिबर्टी के बारे में? लिबर्टी अपन क्यों इतना बात कर रहे हैं? ये मील इतना लिबर्टी पे क्यों जोर दे रहा है? वाई इज एम्फसाइजिंग ऑन सो मच ऑन लिबर्टी? हाँ, लिबर्टी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट प्ले करती होगी ना. डू यू रियली थिंक कि लिबर्टी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल? तो क्या रिश्ता है यहाँ पे? Now we'll look at the next point, that is the relationship between liberty and state. क्या रिलेशन रहेगा लिबर्टी और स्टेट के बीच में? मीन lays down an general principle that government interference in the activity of individual should be reduced to minimal. See, मील्स क्या बोलता है कि बाबा कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए इंडिविजुअल के लाइफ में, राइट? क्योंकि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगेगा आपके लाइफ में तो विल यू बी एबल टू वर्क इन अ प्रॉपर वे? नहीं. अगर गवर्नमेंट आप पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालेगा तो आप अच्छे से कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे. वही अगर गवर्नमेंट आपको आज़ादी देगा, मिनिमम इंटरफेरेंस करेगा तो क्या है, आपका अच्छे से ग्रोथ होगा, आपका डेवलपमेंट अच्छे से होगी. और जब आप अच्छे से डेवलप होगे तो इनडायरेक्टली आपका स्टेट भी अच्छे से डेवलप होगा ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी
he advocated a complete system of individualism, see, on the basis of utility. ही उसने पूरा ये सिस्टम बनाया ऑफ इंडिविजुअलिज्म. मील एक्सपांडेड द रिलेशनशिप between the state and the liberty of the people as follows. See, मील ने क्या किया, अब मील ने रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द लिबर्टी ऑफ द पीपल बोला है इन द फॉलोइंग मैनर. J.S. Mill believed that an individual has two aspects of life. अब मील क्या बोलता है, इंडिविजुअल केस में क्या रहते हैं, दो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रहते हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट है that is the individual aspect and second is the social aspect. Individual aspect में क्या बोल रहे हैं, the individual aspect which concerned him alone. See, individual aspect किस पे बेस्ड होता है, नाम जैसा वैसा ही. individual aspect में अपन क्या करते हैं, सिर्फ खुद का ही देखते हैं, खुद का ही सोचते हैं ना individual aspect में. और what about social aspect? In social aspect every individual is the internal part of society. Accordingly, the action of individual may be divided into two categories. See, individual aspect में बस आपको खुद के अकेले का सोचना है, और social aspect में क्या है, यहाँ पे हर कोई सोसाइटी का पार्ट रहता है और वो सोसाइटी के हिसाब से ही सोचता है. Accordingly, the action of individual may be divided into two category. उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये एक्शन जो सोसाइटी बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वी कैन डिवाइड द एक्शन इनटू टू कैटेगरीज. देन मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन. इंडिविजुअल्स आर सोवेटनेट ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड. सी, इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल का अपने अपने बॉडी पे, अपने अपने माइंड पे कंट्रोल रहता है, बराबर है. और हर अपना ही, अपन खुद ही अपने बॉडी और दिमाग पे कंट्रोल करते हैं. दैट इज़ नथिंग बट अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन. इसको कुछ नहीं बोलते, इसको अपन बोलते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बोलते हैं. अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या है, द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल विच अफेक्ट सोसाइटी मे बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट. सी, द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विच अफेक्ट्स सोसाइटी कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट. It is a social aspect of individual personality. See, ये क्या है, ये एक social aspect of personality है. Here the society has a right of interference in individual action. यहाँ पे सोसाइटी को क्या है, पूरा हक है ताकि वो इंटरफियर करे इन इंडिविजुअल्स एक्शन. बट दिस इंटरफियरेंस मस्ट बी reduced to minimum. सी, सोसाइटी इंटरफियर करे बट कम से कम करे. मतलब इंटरफियर करने का आपको मैंने राइट दे दिया तो इसका मतलब है आप हर मैटर में इंटरफियर करो, हर चीज़ में इंटरफियर करो, नहीं, आपको एक उसमें भी लिमिटेशंस है. एनी इंक्रीज इन स्टेट इंटरफियरेंस एंड एक्शन इज प्रिजुडाइज टू द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी. सी, एनी इंक्रीज इन स्टेट इंटरफियरेंस. सी, अगर स्टेट इंटरफियरेंस बढ़ने लग गया तो क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी खतरे में आती है, और एक हद तक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी रुक जाता है. लाइक आपका डेवलपमेंट भी सब जगह एक क्या है, एक थोड़ा सा स्टडी हो जाता है. तो इज़ इट गुड फॉर द स्टेट? नो, नॉर इट इज़ गुड फॉर गवर्नमेंट, नॉर इट इज़ गुड फॉर द इंडिविजुअल. अकॉर्डिंग टू मिल, स्टेट एक्शन कैन मीन्स कलेक्टिव ट्रेनिंग. सी, मिल क्या बोलते हैं, स्टेट का एक्शन क्या है, एक गलत एक्शन पूरे सबको बर्बाद कर सकता है. मिल वॉज अगेंस्ट एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस. He said, state has a right of regulating the action of individuals which affects the society. अब मिल क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टेट को हक है कि पापा वो रेगुलेट करे, इंडिविजुअल के एक्शन को देखे, करे. अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बोलो, तो आप रिस्ट्रिक्शंस लाओ, राइट. अगर इंडिविजुअल गलत बिहेव कर रहे और उसका सोसाइटी पे असर हो रहा है, देन श्योरली यू कैन टेक द एक्शन. द स्टेट कैन कंपेल द इंडिविजुअल to perform his duties and obligation as the member of the society. See, the state can compel the individual to perform his duties and obligation as the member of the society. But in action of the individual which concern him alone, the state should not interfere. See, but in action में क्या हो गया यहाँ पे, of individual
which is concern him alone, it should not interfere. The state should not interfere. The individual should be allowed to carry his opinion into practical at his own cost. See, अब इंडिविजुअल ने अपना ओपिनियन के हिसाब से, आपको जैसा ओपिनियन लगता है, जो ओपिनियन है, जैसा आपको काम करना है वैसे काम करो, जो भी रहेगा वो आपके दम पे रहेगा, एंड उसका वो ओपिनियन का असर जो भी होगा वो आप पे होगा, एंड यू शुड बेयर दैट अलोन. द स्टेट शुड नॉट इंटरफियर in the affair of the association or corporation which affect their members only. See, यहाँ पे क्या है, the state, यहाँ पे state इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी एसोसिएशन में या कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स को अफेक्ट करें. द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ टू एनहांस लिबर्टी. सी, स्टेट का फंक्शन क्या है, इज़ टू एनहांस लिबर्टी. नाउ I think we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll be looking at the मील्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिबर्टी. अब मील ने लिबर्टी को कैसे क्लासीफाई किया है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. मील वाइल रीड द टॉपिक वेल. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID इज़ rasika.pagaria@arhamedu.in. Thank you.